Hello students. Today we are going to discuss about some basic concepts of chemistry, that is the first unit of class 11th. In the second part we are going to discuss about the laws of chemical combinations in detail. First law is law of conservation of mass. According to this concept, which was proposed by Lavoisier, in a chemical reaction mass can neither be created nor destroyed. That is, total mass of reactants always remains same as total mass of the products. इसका मतलब ये है कि किसी रिएक्शन में जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है उसके बराबर ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है. मतलब किसी रिएक्शन में नहीं हम मास को जनरेट कर सकते हैं, नहीं हम लोग मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओनली इन दीज प्रोसेसेस one type of substance changes into another substance. For example, you can see here when carbon and oxygen reacts to form carbon dioxide gas. So here we are taking mass that is equal to 12 gram and oxygen equal to 32 gram. Then mass of the CO2 will be 44 gram only. That is 44 gram. In the same way, you can see here when hydrogen and oxygen are reacting together, if we are taking 4 gram of hydrogen and 32 gram of oxygen, then we will get 36 ग्राम ऑफ H2. मतलब वाटर यहाँ 36 ग्राम प्रोड्यूस होगा. इस तरह से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में किसी रिएक्शन में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देन नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच वाज प्रपोज्ड बाय प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट. According to this concept, in a chemical reaction, the elements are always present in fixed ratio by mass. मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है बाई मास वो फिक्स्ड होता है. जैसे आप देखें तो CO2 में आप देखें तो कार्बन का मास कितना हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम. तो 16 इंटू 2 32 ग्राम, तो 32 ग्राम. इन दोनों का रेशियो लीजिए तो 4 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन का कट करके कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से आप लीजिए उसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:8. नेक्स्ट वन इज H2O. इसी तरह आप H2O में देखिए तो H2 में हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है तो 2 के लिए कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है ऑक्सीजन के लिए 16 तो 16 हमने ले लिया. दोनों को कट कीजिए सो वी विल गेट रेशियो दैट इज इक्वल टू 1:8. 1:8. So in a chemical reaction when two or more than two elements are reacting together to form a compound, then they should react together in fixed ratio by mass. So when we are preparing CO2 by any method contains carbon and oxygen in the fixed ratio that is equal to 3:8 by mass. In the same manner, when we are taking H2O from any source, then hydrogen and oxygen ratio will be 1:8 only. Now, next law is law of multiple proportion, which was proposed by John Dalton. According to this law, when two elements combine to form two or more than two compounds, then the different weights of one element which combine with the fixed weight of another bear a simple ratio to one another. मतलब जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाने के लिए तो उसमें से एक एलिमेंट का अगर वेट हम लोग फिक्स रखें तो दूसरे एलिमेंट जो आपस में हैं उनका रेशियो जो होता है मास का वो सिंपल होल नंबर रेशियो मिलता है. जैसे हम लोग लें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. इनका एग्जांपल हम लोग लें तो देखते हैं जब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बन में जो वेट है कार्बन में कार्बन का वेट 12.01 मतलब 12 ग्राम है. में CO2 में ऑक्सीजन का वेट लें दैट इज इक्वल टू 32 और कार्बन मोनोऑक्साइड में वेट है 16 ग्राम. जब दोनों को हम लोग कट करें सो वी विल गेट 2:1 रेशियो. सो दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. देन नेक्स्ट example is you can see here that nitrogen combined with oxygen to form a number of compounds that is NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 etc. And we are going to verify the law of multiple proportion in NO and N2O. Then you see here that in NO and N2O
मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें 14 ग्राम है तो इसमें 28 ग्राम है, और दोनों में ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है। अब हम लोग दोनों में यहाँ NO का और N2O का हम लोग नाइट्रोजन का मास लेते हैं। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं NO और N2O में नाइट्रोजन का मास का, सो वी आर गेटिंग हियर 1:2 रेशियो। नेक्स्ट वन इज गैलुसैक्स लॉ ऑफ gaseous combinations, or it is also known as Gay-Lussac's law of combining volumes. According to this law, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Care should be taken that this law is applied only when reactants and products are गैसेस। इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे क्या हों, गैसेस हों। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, H2 plus Cl2 are reacting to produce HCl. So you can see here all reactants and products are gases. तो यहाँ देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर 1 मोल अगर हाइड्रोजन है तो 1 मोल गैस आपको Cl2 है और 2 मोल यहाँ पर HCl है। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन होगा वॉल्यूम के रेशियो में हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl का, तो एकदम बिल्कुल जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल रेशियो है वहीं पर होगा। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो मोल का रेशियो है एकदम उसी के रेशियो में यहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन करेंगे। जैसे H2 का रेशियो कितना है, 1 है, Cl2 का 1 है और HCl का यहाँ पर 2 है। तो वॉल्यूम का रेशियो भी जो रिएक्ट करेंगे या प्रोड्यूस होंगे वो 1:1:2 के रेशियो में ही होंगे। सो दिस इज नोन एज गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस कॉम्बिनेशंस। रिएक्शन हियर, सपोज वी आर टेकिंग C plus O2. C plus O2 is giving CO2. So you think what is the situation here? What is the volume ratio here? ये भी गैस है और CO2 भी गैस है। तो यहाँ पर रेशियो देखिए, यहाँ पर क्या हम गैलुसैक्स लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम गैलुसैक्स लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है। सो वी कैन नॉट अप्लाई हियर दिस लॉ। सी हियर दैट इफ वी आर टेकिंग N2, this is gas, when it is reacting with hydrogen gas H2, then we are getting here ammonia gas. This is gas and this is also gas. So when you are going to take volume ratio, so according to balanced chemical equation, the volume ratio should be 1:3:2. It means when we are reacting 1 mole of N2, then we will get 2 mole of NH3. Or when 3 moles of hydrogen is reacting, we are getting 2 moles of NH3. So this is known as Gay-Lussac's law of gaseous combinations. Then next one is Avogadro law. According to this law, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. For example, for 1 mole, that is 22.4 liter of every gas at STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। 0 डिग्री से मतलब 273 केल्विन, और एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया हमारा 180 m। इस प्रेशर पर अगर देखा जाए तो एक मोल गैस कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP होता है। तो एक मोल गैस हमारा कितना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ। मतलब अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर हो तो इक्वल वॉल्यूम गैस जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। देन टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वाज प्रपोज्ड बाय लेवोसियर। We discussed about law of conservation of mass which was proposed by Joseph Prost, and law of multiple proportion which was proposed by John Dalton, and Gay-Lussac's law of combining volumes or gaseous combinations which was proposed by Gay-Lussac's, and Avogadro law which was proposed by Avogadro only. And you are required to do some assignments, so you should do it by yourself. Some numerical problems are also given here. You should do it by yourself.